السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آئیے 26 جنوری کے خوبصورت موقع پر مجاہدین آزادی کو یاد کیا جائے، انہیں سلام عقیدت و محبت پیش کیا جائے شاعری اور ادب کی زبان میں۔ پھر آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل لرن آن لائن ود فیضان خان میں۔ صدارت کے فرائض انجام دے رہے تھے پہلے حصے کی محترم محمد احمد خادیب صاحب، اب دوسرے حصے میں دوسرے مصرے کے طور پر جناب فاروق جاذب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی صدارت کا اعلان ہوتا ہے اور ان کی صدارت کو استحکام بخشنے کے لیے محمد احمد خادیب صاحب ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ امام کے پیچھے امام ایسا رکھا جاتا ہے کہ خدا خواستہ کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو کہ نماز جاتی رہے تو فوری جو ہے دوسرا امام کہتا ہے ہٹیے، لنگڑی نہیں مارتا ہے مسلمانوں کی طرح، لیکن یہ ضرور تھا اس کو کھسکایا جاتا ہے، خود نماز پڑھائی جاتی۔ یہ فریضہ صرف محمد احمد خان عدیب انجام سے کرتے ہیں، خدا خواستہ ان کے ساتھ کوئی دقت ہو تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں، کیا کرے۔ اسی لیے میں ان کے بغل میں بیٹھا ہوں، ان سے بہت کچھ سیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اب اس سلسلے کو میں پھر آگے بڑھاتا ہوں اور بالکل جوان سال شاعر، تازہ بتازہ شاعر افروز اکرم ہیں۔ یہ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، لکھیم پور سے ان کا تعلق ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں۔ اس زمانے میں جس کو انگریزی اچھی آتی تھی وہ کمیونسٹ بن جاتا تھا، پھر ایک دور وہ آیا جو شراب اچھی ذرا پیتا تھا وہ ذرا بڑا شاعر ہوتا تھا، اب ایک ایسا دور آیا جو نمازی قاعدے کا ہے وہی اچھا شاعر بھی ہے۔ تو انقلاب کا دور یہ ہے، زوال کا دور وہ تھا جو ماضی گزر گیا۔ اس دور میں یہ فیشن تھا کہ انگریزی بولیے کمیونسٹ ہو گیا، اللہ رسول کو نہیں مانتے، شراب پی تو بڑے شاعر ہو گئے۔ اکا دکا سے مولانا حالی وغیرہ کہ ان لوگوں نے شراب بھی نہیں پی، باوجود ہے وہ شاعری اچھی کی، یعنی غالب نے ہمیشہ ان کو ڈسکریج کیا کہ مولوی کا کام شاعری نہیں ہے، لیکن اسی مولوی نے اتنا بڑا کام کیا کہ آج غالب کی پہچان کی وجہ مولانا حالی ہے، اور علامہ فضل حق خیر آبادی کا نام نہیں آتا، وہ بھی ان کے شاگرد تھے، دونوں نے ان کے کلام کا انتخاب کیا، ورنہ پتہ نہیں غالب کیا ہوتا۔ غالب کے مقابلے میں ذوق بڑا شاعر تھا، لیکن غالب نے وہی کام کیا جو آج کے دور کے شاعر کرتے ہیں، ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو گرانا، دوسروں پہ بھکتی کسنا۔ تو اگر غالب یہ سب حرکتیں نہ کرتے تو شاید غالب نہ ہو پاتے اور حالی کا ان پہ احسان نہ ہوتا۔ تو ہمارے دور میں نوجوان شعراء کا انقلاب یہ ہے کہ یہ شرابی بھی نہیں ہے اور بحمدللہ نمازی ہیں۔ ایسے ہی ایک شاعر آپ کے روبرو ہے افروز اکرم کی شکل میں، آپ ان سے کلام سنیں۔ تو نہ بھولے جسے وہ یاد بھی بن سکتا، تو نہ بھولے جسے وہ یاد بھی بن سکتا ہوں، میں بھی پھول ہوں اولاد بھی بن سکتا ہوں، کیا کہنے میں بھی پھول ہوں اولاد بھی بن سکتا ہوں، باز آجا تم میرے ملک کے دشمن، ورنہ میں بھگت سنگھ بھی آزاد بھی بن سکتا ہوں، میں بھگت سنگھ بھی آزاد بھی بن سکتا ہوں۔ کیا تیور ہے، واہ واہ۔ غزل کا زخم دینے مجھے سبھی آئے، 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 کیسے کہہ دوں کہ اپنے ہی آئے، کیسے کہہ دوں کہ اپنے ہی آئے۔ تم نہ سمجھو گے حال دل میرا، تم نہ سمجھو گے حال دل میرا، تم نہ سمجھو گے حال دل میرا، تم تو دل میں ابھی آئے، تم تو دل میں ابھی آئے۔ 哎 بہت شکریہ۔ 哎 کیا 哎
शायरों में छेड़छाड़ किया कीजिए, सब मुशायरे का हिस्सा है। ये शेर ठीक था यार, मैं छोटा हो सकता हूँ, शेर ठीक है, सब पहले पढ़ा ये भी शेर बतौर खास मुलाहिजा करें। वो कुदूरत से साफ दिल पहले, वो कुदूरत से साफ दिल पहले, हो कुदूरत से साफ दिल पहले, तब तुम्हें रब की बंदगी रब की बंदगी आए। हर जगह घूम फिर के आखिर में, हर जगह घूम फिर के हर जगह घूम फिर के आखिर में, लौट कर अपने घर में ही आए, लौट कर अपने घर में ही आए। दिल मचलता नहीं है तेरे बिना, दिल मचलता नहीं है तेरे बिना, दिल मचलता नहीं है तेरे बिना, तू जो आए तो दिलकशी आए, तू जो उसको जाना था वो गया अकरम, उसको जाना था वो गया अकरम, उसको जाना था वो गया अकरम, तेरी आँखों में क्यों नमी आए, तेरी आँखों में क्यों नमी आए। जख्म देने मुझे सभी आए, जख्म देने मुझे सभी आए, कैसे कह दूं कि अपने ही आए, कैसे कह दूं कि अपने ही आए। अच्छी शायरी से नवाजा आपने, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत आपको शाबाशी भी दी गई। हालांकि बरेलवियों का मामला होता है बड़ा माल मिलता है, लेकिन जो शाबाशी यहाँ मिली वो उनके यहाँ नहीं मिली। जहाँ जाहिर होता है वहाँ बातिन कम होता है, जहाँ बातिन होता है वहाँ जाहिर कम होता है। कहीं कहीं खूबी है, कहीं एक खामी है। तो नात की महफिल में जैसे देवबंदियों के यहाँ बड़ा फुकदान रहता है, चाहे मदे सहाबा के शेर हो, चाहे हज़रत अली पे हो, चाहे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, चाहे किसी खलीफा पे हो, लेकिन सुन्नी जो होता है वो सहना रहता है, दाद नहीं देता है। वो कहते हैं ये बिदात वो बिदात वो बिदात। अच्छा ये जो आप कहती हैं जो सूटेड बूटेड घूमते हैं, ये कौन सी बिदात है? ये अंग्रेज की बिदात आप नहीं जानते? भाई मामूली कुर्ता पजामा पहनते मस्त रहते उसी में, या लखनऊ का चिकन का कुर्ता था, लेकिन आपने तरक्की की। लेकिन इस सिलसिले में रोशन ख्याल नहीं हो सके कि अल्लाह के रसूल ने रज़ाए मुबारक पेश की, तो वो चादर उस जमाने में तो भी कीमती का तब से आज तक इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने अता की। लेकिन आज भी अगर आप चादर खरीदने जाएं तो वो 100 रुपये से कम तो कोई मिलती नहीं, और 500 तक भी हल्की फुल्की मिली जाती है, और महंगी नहीं और महंगी होती है। तो बरेलवी इस मामले में देवबंदियों से आगे बढ़ गया, वो कम से कम अल्लाह के रसूल की सुन्नत सही तरीके अदा करता है। हमारा मौलवी सहमा हुआ है,
दूसरी पड़ेगा तो वो कांप कांप के, और पैसे देना होगा उसका भी मसला है। तो इस सिलसिले में हम लोग होना ही चाहिए कि ना हम देवबंदी हो ना बरेलवी हो, जो चीज जहाँ अच्छी मिल जाए वो उठा लेना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल अगर ये पैगाम देना चाहते कि अक्सर मैंने मौलवियों को देखा है वो खामोशी से कानाफूसी करते हैं औरतों की तरह कि साहब ये क्या तरीका, मुजरे का तरीका है। तो नौज़ुबिल्ला अल्लाह के रसूल को अगर ये खदशा होता अपनी उम्मत से कि ये गलत रस्म राइज हो जाएगी तो वो रिदाए मुबारक घर भिजवा लेते हसन बिन साबित के, कोई खराबी जाए चुप कर दे आता बैक डोर से। लेकिन सामने देने का मकसद ही ये था कि रहती दुनिया तक तुम भी यही अमल जारी रखो। तो मौलाना कमर इस हमले से जो बंदियों में से चुटकी भर बरेलवी हुए, ये पैसे से देते हैं। ये गजल की महफिल है, इसको आप सुनिए, बता दीजिए। और अब मैं चलता हूँ, जनाब हमारे दरमियान बैठे हैं आसिम काकोलवी साहब। पहले ग्रुप में मैंने जो सदारत थी जनाब मुफक्किर अदब मुजाहिद अदब मोहतरम मोहम्मद अहमद खान अदीब साहब की, उसमें आसिम खां आफरीदी साहब ने अपना कलाम पेश किया। अब हम चलते हैं काकोरी की तरफ, वहाँ से भी एक आसिम हमारे दरमियान है, ये नज़में भी पढ़ते हैं, गज़लें भी पढ़ते हैं, खूब कहते हैं, खूब पढ़ते हैं। वो तशरीफ लाएँ, आसिम काकोरी साहब तशरीफ लाएँ, अपने कलाम से नवाजें। बहुत खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं जनाब साहब। रिजवान भाई और उनके वालिद मोहतरम की काविशों से हम लोग यहाँ जमा हैं। जनाब जासिम लखनवी साहब आज के सदर मोहतरम हैं, बचपन से हम इनको पढ़ते हुए आ रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि उनकी सदारत में हमें कलाम पढ़ने का शरफ हासिल हो रहा है। वसी भाई जो कि बिल्कुल मिल्लत के खिदमत के लिए हर वक्त वाबस्ता रहते हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। मैं सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ, और जिस उन्वान के तहत ये महफिल सजाई गई है, दो चार कतात हैं जो पुरानी डायरी में लिखी हुई थी, वही मैं नोट कर लाया हूँ कि कई नदियाँ गले मिलकर हमें ये भी बताती हैं, कई नदियाँ गले मिलकर हमें ये भी बताती हैं, मोहब्बत की वजह से ही जहां में हम तो यकता हैं। अभी जो हमारा परचम ऑस्ट्रेलिया में लहराया, वहीं से शेर है कि कई आपको मजबूती दोनों तरफ मिल रही है, लेकिन दोनों खास साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह, एक अरबी दुनिया के और एक जो है वो मरियाबाद के खास साहब जी, जवान साहब भी क़यादत आपको मिल रही है, और वो हुज़ूर क़यादत तो ही माशाअल्लाह, और उधर फारूकी है, फारूकी भी खास साहब से क्या कहने हैं, ये खास साहबों को पीछे पड़े कई नदियां गले मिलकर हमें ये भी बताती हैं, मोहब्बत की वजह से ही जहां में हम तो यकता हैं, मोहब्बत की ये धरती है यहाँ नफरत नहीं चलती, मोहब्बत की ये धरती है यहाँ नफरत नहीं चलती, सिराजो पन तो गिल से मिल के भारत क्या शेर आपने पढ़ दिया कि मौलाना पानी पीना पड़ेगा। कई नदियां गले मिलकर हमें ये भी बताती हैं, मोहब्बत की वजह से ही जहाँ भी हम तो यकता हैं, मोहब्बत की ये धरती है यहाँ नफरत नहीं चलती, सिराजो पन तो गिल से मिल के भारत देश बनता है। और बड़े हों या के बच्चे हों, कोई भी उम्र हो उनकी, बड़े हों या के बच्चे हों, कोई भी उम्र हो उनकी, बिठाकर पास माँ अपने उन्हें खाना खिलाती है। बड़े हों या के बच्चे हों, कोई भी उम्र हो उनकी, बिठाकर पास माँ अपने उन्हें खाना खिलाती हैं, वतन पर मरने मिटने का ये जज्बा उनको हासिल है कि जिनको दूध उनकी माँ वुज़ू करके पिलाती है। बड़े हों या के बच्चे हों, कोई भी उम्र हो उनकी, बिठाकर पास माँ अपने उन्हें खाना खिलाती हैं, वतन पर मरने मिटने का ये जज्बा उनको हासिल है कि जिनको दूध उनकी माँ वुज़ू करके पिलाती हैं। और चार मिसरे और के जो क़ज़्ज़ाक़े अजल आया तो सब कुछ लूट जाएगा, जो क़ज़्ज़ाक़े अजल आया तो सब कुछ लूट जाएगा, न लेकर कुछ भी जाओगे
यही सब छूट जाएगा, वो मंदिर हो कि मस्जिद हो या कोई धर्मशाला हो, वो मंदिर हो कि मस्जिद हो या कोई धर्मशाला हो, अगर टूटा कोई भी घर तो भारत टूट जो कज़ाक़े अजल आया, क्या कहने भाई, जो कज़ाक़े अजल आया तो सब कुछ लूट जाएगा, न लेकर कुछ भी जाओगे, यही सब छूट जाएगा, वो मंदिर हो कि मस्जिद हो या कोई धर्मशाला हो, अगर टूटा कोई भी घर तो भारत टूट जाएगा, और वतन की पाक इज्जत को कभी घटने नहीं देंगे। वतन की पाक इज्जत को कभी घटने नहीं देंगे, वतन की बरकरारी कभी रुकने नहीं देंगे, जो कटता है तो कट जाए सरे बाजार सर अपना, मगर अपने तिरंगे को कभी झुकने वतन की पाक इज्जत को कभी घटने नहीं देंगे, वतन की बरकरारी कभी रुकने नहीं देंगे, जो कटता है तो कट जाए सरे बाजार सर अपना, मगर अपने तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। लगा दी देश की खातिर वो जिसने जान की बाजी, लगा दी देश की खातिर वो जिसने जान की बाजी, उसी मर्दे मुजाहिद को तो हम अशफाक कहते हैं। लगा दी देश की खातिर, लगा दी देश की खातिर वो जिसने जान की बाजी, उसी मर्दे मुजाहिद को तो हम अशफाक कहते हैं। छुड़ाया जिसको बिस्मिल ने लहू देकर फिरंगी से, वही धरती है पुरखों की जहां हम आज रहते हैं। आखिरी चार में से उसके बाद इजाजत कि मैं अपने आंख के आंसू को ही तलवार लिख दूंगा, मैं अपने आंख के आंसू को ही तलवार लिख दूंगा, वतन के दर्द को ही मैं वतन का हार लिख दूंगा, मैं अपने आंख के आंसू को ही तलवार लिख दूंगा, वतन के दर्द को ही मैं वतन का हार लिख दूंगा। रही हालत अगर यूं ही वतन को बेचने वालों, तुम्हारा नाम आएगा तो मैं गद्दार लिख दूंगा। क्या कह रहे, मैं अपने आंख के आंसू को ही तलवार लिख दूंगा, मैं अपने आंख के आंसू को ही तलवार लिख दूंगा, वतन के दर्द को ही मैं वतन का हार लिख दूंगा। रही हालत अगर यूं ही वतन को बेचने वालों, तुम्हारा नाम आएगा तो मैं गद्दार लिख दूंगा। कलावी लघु लहजे की शायरी आपने की, और अब जरूरत है किसी कलावी लघु लहजे के शायर की, वो यहाँ पे मौजूद है जनाब नसीर अहमद नसीर साहब। पूरा माहौल बना दिया, निजामत की अब जरूरत नहीं है, इनकी शायरी जो माहौल बना उस माहौल का पूरा फायदा कोई उठा सकता है तो वो जनाब नसीर अहमद नसीर है। तशरीफ लाए अपने कलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रिजवान फारूकी साहब, आज कैमरा ऐसा सेट किया है कि आपका कैप भी सेट रहेगा, उनका कैमरा भी सेट। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस खूबसूरत महफिल में मदद किया और बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ कि आज मोहतरम मोहम्मद अहमद खान अदीब साहब और फारूक जाजिब साहब के दरमियान में कुछ टूटा फूटा लेकर आए। किस कदर बराबर की मिसरे आप मुखातब कर रहे हैं। मोहतरम मोहम्मद अहमद खान अदीब साहब ने इस जलसे की शुरुआत में जहाँ से बात छोड़ी थी, जी जी, मैं चाहता हूँ वहीं से सबसे पहले वहाँ से शुरू करूँ और फिर आगे कुछ अर्ज किया है कि सूरज गमों का डूब गया, मुस्कुराइए।
सूरज غموں کا ڈوب گیا गमों का डूब गया, मुस्कुराइए 26 जनवरी है, गजल गुनगुनाइए। ये सही कहा, जहाँ छोड़ा वही मैंने उठा लिया। सूरज गमों का डूब गया, मुस्कुराइए 26 जनवरी है, गजल गुनगुनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब ये शकील जावे का एक ही खोटा था, फौरी शेर कह सकते, वो भी आपने बड़ी अच्छी शायरी सुनाई हमारे आसिम साहब ने, बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए उसी का एक दूसरा भी रुख है, उसे भी पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, समाप्त करिएगा। अर्ज किया है कि जो कर सका न कभी एहतराम आजादी, कर सका न कभी आजादी, जो कर सका न कभी एहतराम आजादी, उसी को सौंप दिया तुमने जामे आजादी। जो कर सका न कभी, जो कर सका न कभी एहतराम आजादी, उसी को सौंप दिया तुमने जामे आजादी। और पुराने नाम बदलने का शौक है उसको, बदल न दे कहीं जिद में वो नामे आजादी। जो कर सका न कभी एहतराम आजादी, उसी को सौंप दिया तुमने जामे आजादी। पुराने नाम बदलने का शौक है उसको, बदल न दे कहीं जिद में वो नाम है आजादी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कथा और समाप्त कर लें। अर्ज किया है कि कहीं बखार कहीं दुश्मनी का आरा है, कहीं बखार कहीं दुश्मनी का आरा है, कहीं बखार कहीं दुश्मनी का आरा है, और कदम कदम पर बस अल्लाह का सहारा है। कहीं बखार कहीं दुश्मनी का आरा है, कदम कदम पर बस अल्लाह का सहारा है। और हमारे वास्ते रब ने बनाई है दुनिया, ये मुल्क ही नहीं सारा जहां हमारा है। मुल्क ही नहीं, सारा जहां हमारा। बहुत अच्छा है, हमारे वास्ते रब ने बनाई। कहीं बखार कहीं दुश्मनी का आरा है, कहीं बखार कहीं दुश्मनी का आरा है, और कदम कदम पर बस अल्लाह का सहारा है। हमारे वास्ते रब ने बनाई है दुनिया, ये मुल्क ही नहीं सारा जहां हमारा है। ये मुल्क ही नहीं सारा जहां हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद अशार हाजिर है, मतलब हाजिर है। अर्ज किया है कि चांद ही निकला कफन से, न सितारे निकले। देखिएगा कि चांद ही निकला कफन से, न सितारे निकले, और उसकी अर्थी से गुनाहों में शरारे निकले। चांद ही निकला कफन से, चांद ही निकला कफन से, न सितारे निकले, उसकी अर्थी से गुनाहों के शरारे निकले। और एक दरबारे शहदी के सिवा दुनिया में, एक दरबारे शहदी के सिवा दुनिया में, सब के सब जंग व तशद्दुद के इदारे निकले। एक दरबारे शहदी के सिवा दुनिया में, एक दरबारे शहदी के सिवा दुनिया में, सब के सब जंग व तशद्दुद के इदारे निकले। सब के सब जंग व तशद्दुद के इदारे निकले। और शेर देखिएगा कि जिनसे उम्मीद थी कर देंगे मुरादें पूरी, जिनसे उम्मीद थी कर देंगे मुरादें पूरी, वो तो बाजार में खुद हाथ पसारे निकले। वो तो बाजार में
خود ہاتھ پسارے نکلے. وہ تو بازار میں خود ہاتھ پسارے نکلے. اس شعر پہ تھوڑی سی توجہ خاص چاہوں گا کہ وہ تو بازار میں خود ہاتھ پسارے نکلے. کیا کہنے جس تجوری کے لیے میں نے اسے قتل کیا. دیکھیے گا, جس تجوری کے لیے میں نے اسے قتل کیا, اس تجوری سے تو قرآن کے پارے نکلے. جس تجوری کے لیے میں نے اسے قتل کیا, اس تجوری سے تو قرآن کے پارے نکلے. اور اس کی توصیف بھلا کیسے بیاں کی جائے, اس کی توصیف بھلا کیسے بیاں کی جائے, جس کے دیدار میں خود چاند ستارے نکلے. جس کے دیدار میں خود چاند ستارے نکلے, اس کی توصیف بھلا کیسے بیاں کی جائے, جس کے دیدار میں خود چاند ستارے نکلے. اور اے شہنشاہ ترنگے کے لیے سرحد پر, اے شہنشاہ ترنگے کے لیے سرحد پر, جسم سے تیرے کہاں خون کے دھارے نکلے. اے شہنشاہ ترنگے کے لیے سرحد پر, جسم سے تیرے کہاں خون کے دھارے نکلے. اور حاکم وقت کی کس بات کی ہے گل پوشی, حاکم وقت کی کس بات کی ہے گل پوشی, سب کو میدان میں نیزوں پر ہمارے نکلے. حاکم وقت کی کس بات کی ہے گل پوشی, حاکم وقت کی کس بات کی ہے گل پوشی, سب تو میدان میں نیزوں پر ہمارے نکلے. سب تو میدان میں نیزوں پر ہمارے نکلے. اور دوستی پیار محبت ہو کہ وہ حسن سلوک, دوستی پیار محبت ہو کہ وہ حسن سلوک, جو بھی سودے کیے ان سب میں خسارے نکلے. جو بھی سودے کیے ان سب میں خسارے نکلے. اور غزل کا ایک شعر دیکھیے گا کہ جو بھی سودے کیے ان سب میں خسارے نکلے. کیا کہنے تم نے ہونٹوں سے پلائی تو لگا پیاس بجھی, تم نے ہونٹوں سے پلائی تو لگا پیاس بجھی. ورنہ تقدیر کے دریا سبھی کھارے نکلے, ورنہ تقدیر کے دریا سبھی کھارے نکلے. اور عشق میں حد سے گزرنا تو ابھی باقی ہے, عشق میں حد سے گزرنا تو ابھی باقی ہے. کیسے کہتے کہ سب ارمان ہمارے نکلے, کیسے کہتے کہ سب ارمان ہمارے نکلے. اور مقدر یہ حاضر ہے کہ نیند جب آ گئی سورج کی تمازت کو نذیر, نیند جب آ گئی سورج کی تمازت کو نذیر, تب کہیں سیر پہ یہ چاند ستارے نکلے. تب کہیں سیر پہ نیند جب آ گئی سورج کی تمازت کو نذیر, تب کہیں سیر پہ یہ چاند ستارے نکلے. تب کہیں سیر پہ یہ چاند ستارے نکلے. کہ حاکم وقت کی کس بات کی ہے گل پوشی, حاکم وقت کی کس بات کی ہے گل پوشی, سب کو میدان میں نیزوں پر ہمارے نکلے. سب کو میدان میں نیزوں پر چاند ہی نکلا کفن سے نہ ستارے نکلے. اس کی عطی سے گناہوں کے شرارے. تھوڑا وقت لگ جائے گا. وقت لگے گا.
कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा से सर हमारे तो चाहते हैं कोई खास साहब इधर बैठे हो अच्छा संभाले तो है पास साहबों के हाथ धो के साहबों की औकात कहीं कहीं ये भी होता है कहीं फारूकी ज्यादा होते हैं फारूकी हम एक कहावत ये कहते हैं साहबों के पीछे लगने पे, लेकिन हम कहेंगे नहीं चलिए। हाँ साहब अगर रामपुरी हो तो पीछे ही लगते हैं, आबादी इतने आयबदार नहीं है। तो बहुत धमाके खैर माहौल बना दिया जनाब नसीर अहमद नसीर साहब ने। और मैंने कहा था कि जो इनकलाब बर्पा किया, जो काकोरी से इनकलाब उठा है, उसका उसको इंतहा पहुंचाएगा लखनऊ का शायर। लखनऊ बहरहाल जम तो हो गया, लेकिन ये कस्बात की जो अहमियत है, कस्बात ही तो लखनऊ को माहौल फराहम करते एनर्जी, वरना लखनऊ जो था असल लखनऊ तो खत्म हो गया। जाहिर सी बात है कि जो दुनिया में आता है वो जाता है, तो आसपास के लोगों का सपोर्ट ना हो तो असल लखनऊ कब तक चलेगा। तो लखनऊ में जो बिगाड़ पैदा हुआ अगर उसकी वजह हम हैं तो उसको बनाने की वजह भी हम ही हैं। तो मैं शेर पेश करता हूँ इसलिए कि जब निजामत मैंने की है तो हक भी दोबारा हासिल किया जाए, और जब धमाके खैर माहौल मौलाना कमर को ज़ाय क्यों किया जाए। 2-3 शेर मैं सुनाता हूँ, फिर मौलाना कमर आपके सामने आएंगे ताकि न लगे कि खामखा इनको मैंने ज़ाय किया। तरतीब भी यही है। हम सुकूते शाम की नींद संजीदा हुए, हम सुकूते शाम की मानिंद संजीदा हुए, तुझसे मिलकर जिंदगी हम और तेरी कुर्बत तेरी कसमें तेरी चाहत तेरी बात, तेरी कुर्बत तेरी कसमें तेरी चाहत तेरी बात, जब तस्वुर में मिले इनसे तो तेरी कुर्बत तेरी कसमें तेरी चाहत तेरी बात, जब तस्वुर में मिले इनसे तो नमदीदा हुए। मोहतरम शेर भी हाजिर है कि मौजिज़ा है या करिश्मा मुझको समझाए कोई, मौजिज़ा है या करिश्मा मुझको समझाए कोई, जो यतीमुल अक़ल थे वो कैसे फहमीदा, मौजिज़ा है या करिश्मा मुझको समझाए कोई, जो यतीमुल अक़ल थे वो फहमीदा हुए। और ये शेर भी इन्हीं मोहब्बतों के साथ कि खुश लिबासों की जमात का हुनर तो देखिए, खुश लिबासों की जमात का खुश लिबासों की जमात का हुनर तो देखिए, ऐब उनकी जिंदगी के सारे जमात का हुनर तो देखिए,
ان کی زندگی کے سارے پوشیدہ ہوئے. اور شعر آخری میں سماعت فرمائے. زندگی کو ہم نے بے شک غور سے دیکھا نہیں. زندگی کو ہم نے بے شک غور سے دیکھا نہیں. لمس جب پایا نگاہوں نے تو دزدی. بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. اللہ تعالیٰ بے شک غور سے دیکھا نہیں. جب آپ نے دانت دی تو مولانا قمر نے غور سے دیکھا. ہم قابل دان ہے یا دانت قابل دان؟ بہت اچھا. زندگی کو ہم نے بے شک غور سے دیکھا نہیں. لمس جب پایا نگاہوں نے تو دزدیدہ ہوئے. اور ایک شعر اس میں اور یاد آ گیا, بھول جاتا ہوں سب. شعر سماعت فرمائیں. مقطع سماعت فرما دیں. سر اٹھائے جو محل مغرور تھے رضواں کبھی. سر اٹھائے جو محل مغرور تھے رضواں کبھی. کھا گئی ان کو رعونت اور بوسہ. کبھی کھا گئی ان کو رعونت اور بوسیدہ ہوئے. معجزہ ہے یا کرشمہ مجھ کو سمجھائے کوئی. جو یتیم العقل تھے وہ ایسے فریدہ ہوئے. یہ ہمارے دور کے ادمیہ ہے, وہی آگے سکھاتے ہیں. تو جن پتھروں کو ہم نے عطا کی دھڑکنیں جب بولنے لگے تو ہم ہی پر برس. صورتحال جب اکثر سامنا رہتا ہے تو اس طرح کے شعر بھی ہو جاتے ہیں. وقت برباد کیا آپ لوگوں کا واقعی یہ احسان ہے کہ ہم لوگوں کو سن لیا جاتا ہے, ورنہ آج کل تو لوگ سننے سنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور فیضان کو اللہ سلامت رکھے کہ انہوں نے اس طرح کی محفل آراستہ کی. اور جس عمر میں لوگ جو ہے کھیلنے کودنے میں لگے ہوتے ہیں, گلی ڈنڈا چلا گیا, لیکن فٹ بال اور دیگر کھیلوں میں اس عمر میں ان کے ہاتھ میں موبائل آیا تو انہوں نے وقت کا ضیاع نہ کر کے وقت کا صحیح مصرف یہ کیا کہ ادب کو فروغ دیا اور ایسے قیمتی لوگوں کو یکجا کر دیا. فاروق جاذب صاحب اور قبلہ محمد احمد خان ادیب صاحب. اب دونوں قبلہ تک ہم چلے, اس سے پہلے ایک بڑے قبلہ یہاں بیٹھے دعوت برکاتہم. یہ ایک جھوٹے شعر سے زندہ ان کا یہ کمال ہے. ہم لوگ سچی شاعری کے لیے بھی ہمیں چیخنا پڑتا ہے, کبھی تنم آنا پڑتا ہے, کبھی گلا پڑ جاتا ہے, لیکن مولانا کمال یہ ہے کہ واقعی قرآن نے بھی جو کچھ کہا تھا وہ انہیں لوگ دیکھ داکھ کے کہا. یہ کہتے ہیں اس پہ تم کال مت دھرو, یہ جو کہیں گے تخیل کی وادیوں میں بھٹکتے ہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے. لیکن بے عملی کے باوجود کوئی شعر آبرو پا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں بھی کچھ ہے, اور سفلی کے عامل ہیں, کچھ بھی گڑبڑ کیا تو وہ بھی سب کر دیتے ہیں. مولانا قمر صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک شعر کہا کہ پھر لوٹنا پڑے گا ہمیں گاؤں کی طرف. جائیں گے نہیں, 35 سال یہیں. پھر لوٹنا پڑے گا ہمیں گاؤں کی طرف, شہروں میں زندگی کے اجالے نہیں رہے. انہیں اجالوں میں ہم چاہتے کہ رہیں, اس لیے کہ شہر میں قاعدے کی داد دینے والے بھی تو نہیں, شاعر تو نہیں لیکن داد دینے والے بالکل نہیں ہیں.
तो कभी हमारे हाथ में नज्म ज़ब्त होता तो मैं इनको लिफाफा डबल देता हूँ। अब वो डबल शायर आपके सामने हमारा कमर के रूप में। 4 मिसरे इसके बाद देखिए। अर्ज क्या है कि चाहे लहू का आखिरी कतरा चाहे लहू का आखिरी कतरा बहाइए, जैसे भी हो सके ये गुलिस्तां बचाइए। चाहे लहू का आखिरी कतरा बहाइए, चाहे लहू का आखिरी कतरा बहाइए, जैसे भी हो सके ये गुलिस्तां बचाइए। और मुद्दत से गहरी नींद में सोए हुए हैं जो, मुद्दत से गहरी नींद में सोए हुए हैं जो, अब वक्त कह रहा है उन्हें भी जगाइए। मुद्दत से गहरी नींद में सोए हुए हैं जो, मुद्दत से गहरी नींद में सोए हुए हैं जो, अब वक्त कह रहा है उन्हें भी जगाइए। अब वक्त कह रहा है उन्हें भी जगाइए। कि पहले अपनी अना को मिटा दीजिए, पहले अपनी अना को मिटा दीजिए, फिर किसी को कोई मशवरा दीजिए। पहले अपनी अना को मिटा दीजिए, पहले अपनी अना को मिटा दीजिए, फिर किसी को कोई मशवरा दीजिए। और आपके बस के रंजो मसाइब नहीं, आपके बस के रंजो मसाइब, आपके बस के रंजो मसाइब नहीं, हादिसों को हमारा पता दीजिए। आपके बस के रंजो मसाइब नहीं, आपके बस के रंजो मसाइब नहीं, आपके बस के रंजो मसाइब नहीं, हादिसों को हमारा पता दीजिए। हादिसों को हमारा पता दीजिए। और 4 मिसरे कि इंसान जो गुर्बत में वतन छोड़ रहा है, इंसान जो गुर्बत में वतन छोड़ रहा है, मजबूर है रिश्तों का चमन छोड़ रहा है। इंसान जो गुर्बत में वतन छोड़ रहा है, मजबूर है रिश्तों का चमन छोड़ रहा है, मजबूर है रिश्तों का चमन छोड़ रहा है। और अब उसको कमर झूठी तसल्ली तो न दीजिए, अब उसको कमर झूठी तसल्ली तो न दीजिए, जो दर्द की शिद्दत से बदन छोड़ रहा है। अब उसको कमर झूठी तसल्ली तो न दीजिए, और दर्द की शिद्दत से बदन छोड़ रहा है, और दर्द की शिद्दत से बदन छोड़ रहा है। उम्दा क्या है छोड़ने के बाद देखिए देखिए कि उस दिन से मेरे कल्बो जिगर खैरियत से हैं, उस दिन से मेरे कल्बो जिगर खैरियत से हैं, जब से सुना है वो भी उधर खैरियत से। उस दिन से मेरे कल्बो जिगर खैरियत से हैं, उस दिन से मेरे कल्बो जिगर खैरियत से हैं, जब से सुना है वो भी उधर खैरियत से हैं। एक ज़लज़ले से ऊंची इमारत तो गिर गई, एक ज़लज़ले से ऊंची इमारत तो गिर गई, लेकिन गरीब लोगों के घर खैरियत से। एक ज़लज़ले से ऊंची इमारत तो गिर गई, एक ज़लज़ले से ऊंची इमारत तो गिर गई, लेकिन गरीब लोगों के घर खैरियत से हैं, लेकिन गरीब लोगों के घर खैरियत से हैं। और कि उर्दू के शीन काफ से वाकिफ हूँ इसलिए, उर्दू के शीन काफ से वाकिफ हूँ इसलिए, मेरी गजल के ज़ेरो ज़बर, उर्दू के शीन काफ से वाकिफ हूँ, उर्दू के शीन काफ से वाकिफ हूँ इसलिए, बहुत अच्छा है। मेरी गजल के ज़ेरो ज़बर खैरियत से हैं, मेरी गजल के ज़ेरो ज़बर खैरियत से हैं। अब पत्थर मिजाज लोग तो हायल बहुत हुए, पत्थर मिजाज लोग तो हायल बहुत हुए, शीशे के दिल हमारे मगर खैरियत से हैं। पत्थर मिजाज लोग तो हायल बहुत हुए, पत्थर मिजाज लोग तो हायल बहुत हुए, शीशे के दिल हमारे मगर खैरियत से हैं। तो बेताब दिल से कह दो अभी मुंतजिर रहे, बेताब दिल से कह दो अभी मुंतजिर रहे, आएंगे वो जरूर अगर खैरियत से। बेताब दिल से कह दो अभी मुंतजिर रहे, बेताब दिल से कह दो अभी भैया भरपूर बेताब दिल से कह दो अभी मुंतजिर रहे,
आएंगे वो जरूर अगर खैरियत से हैं, आएंगे वो जरूर अगर खैरियत से हैं। और देखा जो मैं कदे में तो रिंदों ने ये कहा, देखा जो मैं कदे में तो रिंदों ने ये कहा, कहिए जनाबे शेख कमर खैरियत से। देखा जो मैं कदे में तो रिंदों ने ये कहा, देखा जो मैं कदे में तो रिंदों ने ये कहा, कहिए जनाबे शेख कमर खैरियत से। अब वो सच्चा शेर पढ़ दिए। कहिए जनाबे शेख कमर खैरियत से हैं। एक जलजले से ऊंची इमारत तो गिर गई, लेकिन गरीब लोगों के घर खैरियत से हैं। और एक गजल के चलते अभी शेर हो गया यार, बहुत पढ़ दिए। पेमेंट ना कीजिएगा, अगर कहिए तो पढ़ दो ना। ठीक है, तो आपको याद नहीं है, याद बहुत है। वो असर जाहिर भी जितना बढ़िया नहीं पढ़ना, दो शेर पढ़ देंगे, उसके बाद हमें क्या वो पढ़िए, सच्चे वाले पढ़िए। सितम पर जो शिकायत कर रहे हैं, सितम पर जो शिकायत कर रहे हैं वो तौहीने मोहब्बत कर रहे हैं। सितम पर जो शिकायत कर रहे हैं, जो सितम पर जो शिकायत कर रहे हैं वो तौहीने मोहब्बत कर रहे हैं। खुदा का शुक्र गजलों के बहाने हम उर्दू की हिफाजत कर रहे हैं। खुदा का शुक्र गजलों के बहाने, खुदा का शुक्र गजलों के बहाने हम उर्दू की हिफाजत कर रहे हैं। खुदा का शुक्र गजलों के बहाने हम उर्दू की हिफाजत कर रहे हैं। और सुना है आजकल दुनिया में अंधे, सुना है आजकल दुनिया में अंधे उजालों की तिजारत कर रहे हैं। सुना है आजकल दुनिया में अंधे, सुना है आजकल दुनिया में अंधे उजालों की तिजारत कर रहे हैं। और खालिद गजल का शेर दुनिया था कि दिले नादा जरा होशियार उनसे, दिले नादा जरा होशियार उनसे, इनायत पर इनायत, दिले नादा जरा होशियार उनसे, दिले नादा जरा होशियार उनसे, इनायत पर इनायत कर रहे हैं। और कमर गम क्या वतन के छूटने का, कमर गम क्या वतन के छूटने का, परिंदे भी तो हिजरत कर रहे हैं। कमर गम क्या वतन के छूटने का, परिंदे भी तो हिजरत कर रहे हैं। कमर गम क्या वतन के छूटने का, परिंदे भी तो हिजरत कर रहे हैं। सितम पर जो शिकायत कर रहे हैं मोहब्बत कर रहे हैं। बहुत बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छी हो तो इस तकाजा भी हम लोग का है कि ज़्यादा कलाम पढ़ा जाए। मौलाना कमर साहब ने वही काम किया, लेकिन चूंकि हम लोगों ने लिफाफे में एहतमाम इसलिए नहीं किया कि शायद ज़्यादा कलाम पढ़ा। मौलाना कमर बहुत ज़मीन आदमी है और ज़्यादा कलाम पढ़ा, जिन्होंने कम पढ़ा बहरहाल तो यहाँ नहीं वहाँ मिलेगा, अल्लाह ताला के यहाँ मिल जाता है कुछ तो वहाँ इंतजार करें, लेकिन वहाँ का इंतजार कौन है ना, रात का इंतजार कौन करे। आजकल दिल में क्या नहीं होता। एक शेर मौलाना की जब ज़्यादा शायरी पढ़ी तो मुझे एक शेर याद आया उसी गज़ल का, उसको संभालें, उसके बाद मैं आपको चलता हूँ सदर जी बुखार के हुजूर। उससे कबल मैं इनके असरात को काटने के लिए मतलब शेर पढ़ता हूँ। यूं तो हमदर्दी थी उस मक़तूल से सबको बहुत, यूं तो हमदर्दी थी उस मक़तूल से सबको बहुत, अब गवाही चाहिए तो लोग लर्ज़ीदा अब गवाही चाहिए तो लोग लर्ज़ीदा हुए। मोजिज़ा है या करिश्मा मुझको समझाए कोई, जो यतीमुल अक़्ल थे वो कैसे फहमीदा हुए। अब मैं चलता हूँ। किबला डॉक्टर अपने डॉक्टर तो हैं, इसलिए डॉक्टर हैं कि जो बिल्कुल ही सिफले किस्म के लोग हैं वो डॉक्टर हैं आजकल। तो जो लोग अदब के डॉक्टर उनको डॉक्टर क्यों ना कहा जाए। एक साहब है, उन्हें मैं लाया था सहाफत में,
तो सहाफत तो किसी हद तक वो सीख गए, लेकिन डॉक्टर नहीं है। अब उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, डॉक्टर होगा, मंसूर साहब पूरा मजा ले रहा है। इन सब लोगों ने भी उनको फरोग दिया है। हमारी एक किताब आने वाली है उर्दू से लफ्ज़ का मस्कन लखनऊ, उसमें जहाँ जहाँ डॉक्टर लिखा था मैंने खुरच खुरच के निकाल दिए इंतकाम, उसमें सिर्फ मैंने उनका नाम लिखा है और लफ्ज़ मोहम्मद बढ़ा दिया, जिसको वो गैर ज़रूरी समझ के हटाए हुए थे। नदवी भी हटाए हुए थे, वो भी लगा दिया। तो नदवी बड़ा अच्छा वाक़या याद आया आपको बताऊँ कि एक साहब है, उनका भी नाम नहीं लेना है क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त मामला हो जाएगा, आज तक क्लिक बन जाती है हर चीज़ की, तो वो ज़ाया हुए हमारा क्या है। तो उनको मैं दादा मियाँ में ले गया। दादा मियाँ यानी कि नबी रज़ा शाह मारूफ दादा मियाँ, वहाँ के दादा नशीन बिल्कुल ताज़ा बताज़ा हैं, बहुत ही जवासाल हैं, और जितनी देर वो दो जानू बैठते हैं उतनी देर हम लोग पंतीबीर के नहीं बैठ पाते हैं। यानी कुछ होता है उन लोगों से जो मिलता है सज्जादगी से, कि रूहानी क़ुव्वत होती है, जो भी हो, जिस्मानी क़ुव्वत हो, उनके सामने जब वो साहब गए तो बिल्कुल जैसे जो तरीक़ा है बरेलवियों में, उन्होंने अक़ीदतन हाथ चूमे बहुत सलीक़े के साथ, तो उन्होंने कहा नहीं आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा नहीं इनको ज़रूरत इसलिए है कि नदवी नहीं ये फिदवी है। और इनके लिए माजिद लखनवी का ये शेर साजिद आता है कि जो उन्होंने कहा था कि महशर में जो शेख आए तो आमाल नदारत, महशर में जो शेख आए तो आमाल नदारत, इस माल के ताजिर थे वही माल नदारत। ये सूरत हाल है। तो लेकिन हमारे जो बवाना है साहब, ये इनके पास माल भी है और नदारत कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया ना, एक बहुत बड़े आलिम थे, ये छोटे ही होते लेकिन नदवी लिखते थे अपने आप को, और टीला शाह पीर मोहम्मद को महफूज रखा उन्होंने, ये उनका कारनामा। तो वो इनसे आखिर तक कहते रहे भाई देखो तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही है, और तुम कुछ कहो तो सिफली के आमिल भी हो, रुजवान ने उसने कहा था। तो इस तरह मौलाना की मार्केट चल निकली, लेकिन उसमें कमीशन 1% आज तक नहीं मिला। तो अल्लाह इनका भी खैर ही करे। तारीफ के बाद भी कुछ नहीं मामला बना। सब्र दीवार में हुजूर पहुंचता हूँ इकबाल मैशर राय बरेलवी के इस शेर के साथ कि वक्त ने अपनी कसौटी पर बहुत परखा मुझे, वक्त ने अपनी कसौटी पर बहुत परखा मुझे, था मैं सोना इसलिए कहना पड़ा सोना मुझे। खड़े सोने के रूप में मोहम्मद फारूक जाजिब साहब आपके रूबरू हैं, जो कुछ चाहे जितना कुछ चाहे तहत या तो सुना सकते हैं। माइक के लोग हैं तो पढ़ना चाहे तो पढ़ते हैं, बहुत उम्दा है। पढ़ने दिए शेर, उसके बाद में गजल की शेर कीजिए कि उन्हीं के नाम है ये इंतिसाब आज़ादी, उन्हीं के नाम है ये इंतज़ाम, उन्हीं के नाम है ये इंतिसाब आज़ादी, जिन्होंने खुद से लिखी है किताब आज़ादी। क्या कहने यही शेर मौलाना कमर पढ़े तो क़यामत कर दे। उन्हीं के नाम है ये इंतिसाब आज़ादी, जिन्होंने खुद से लिखी है किताब आज़ादी। खुशी मनाओ के 26 जनवरी आई, खुशी मनाओ के 26 जनवरी आई कि तुमने पाई है ताबीर ख्वाब आज़ादी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। एक शेर मिला देखिए, ये पढ़ ये तब आवाज क्या होती है भैया। खुशी मनाओ कि 26 जनवरी आई, खुशी मनाओ कि 26 जनवरी तुमने पाई है ताबीर ख्वाब आज़ादी। दुआ करो कि सभी साये अमाम में रहें, दुआ करो कि सभी साये अमाम में रहें, नहीं है इसके सिवा कुछ जवाब याद नहीं है इसके सिवा कुछ जवाब आज़ादी। और बाहर यूं ही नहीं आ गई गुलिस्तान में, बाहर यूं ही नहीं आ गई गुलिस्तान में, खिला होने जिगर से गुलाब आज़ादी, खिला होने जिगर से गुलाब आज़ादी। वो जोश था कि गुलामी कट गई ज़ंजीर, वो जोश था कि गुलामी की कट गई ज़ंजीर, असर दिखा के रहा इंक़िलाब आज़ादी। उधर भी देख लीजिए मैदान की तरफ, असर दिखा के रहा इंक़िलाब आज़ादी। उसके बाद में मक्ता, और उसके बाद में फिर मतलब कि सभी का फजल बहारा पे हक हो एजाज़ी, सभी का फजल बहारा पे हक हो एजाज़ी। बस एक है ये बेरबा पे आज़ादी। उन्होंने की मतलब लिखिएगा,
ہو جدا بھی اور رسم و راہ بھی باقی رہے. ہو جدا بھی اور رسم و راہ بھی باقی رہے. تم کہیں بھی ہو مگر وابستگی باقی رہے. تم کہیں بھی ہو مگر وابستگی باقی رہے. باقی رہے. دیکھیے گا شعر. سوچنا ہوگا تمہیں آپ کے حوالے سے شعر. سوچنا ہوگا تمہیں اردو زبان کے واسطے. سوچنا ہوگا تمہیں اردو زبان کے واسطے. شاعروں گر چاہتے ہو شاعری باقی ہے. بہت اچھا. سوچنا ہوگا تمہیں اردو زبان کے واسطے. شاعروں گر چاہتے ہو شاعری باقی رہے. خاص طور سے یہ شعر ہے میرا کہ دل کی ہر دھڑکن ہو وابستہ تیری یادوں کے ساتھ. دل کی ہر دھڑکن ہو وابستہ تیری یادوں کے ساتھ. اے خدا جب تک میری ایک ساتھ بھی باقی. دل کی ہر دھڑکن ہو وابستہ تیری یادوں کے ساتھ. اے خدا جب تک میری ایک ساتھ بھی باقی رہے. سے دیکھیے گا. آ گئے تنقید کی زد میں ہنر والے تھے جو. تنقید کی زد میں ہنر والے تھے جو. لاکھ کہا پر میں نہ کوئی کمی باقی رہے. لاکھ کہا پر میں نہ کوئی کمی باقی رہے. خاص طور سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں. دل جلاؤ چاند سورج پر بھروسہ مت کرو. دل جلاؤ چاند سورج پر بھروسہ مت کرو. تم اگر یہ چاہتے ہو روشنی باقی رہے. دل جلاؤ چاند سورج پر بھروسہ مت کرو. تم اگر یہ چاہتے ہو روشنی باقی رہے. ارے بہت عمدہ شعر ہے بھائی. واہ واہ. ایک بار اور پڑھیے. دل جلاؤ چاند سورج پر بھروسہ مت کرو. تم اگر چاہتے ہو تم اگر یہ چاہتے ہو روشنی باقی رہے. اور یہ بھی جناب محمد احمد ادیب صاحب کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. کر شہادت کی تمنا یہ تمنا ہے اگر. شہادت کی تمنا یہ تمنا ہے. شہادت کی تمنا یہ تمنا ہے اگر. زندگی کے بعد بھی یہ زندگی بات. شہادت کی تمنا بہت عمدہ ہے. کر شہادت کی تمنا یہ تمنا ہے اگر. زندگی کے بعد بھی یہ زندگی جواب نہیں بھائی شعر کا. بہت عمدہ. پھر بڑی ایک بار کر شہادت کی تمنا یہ تمنا ہے. یہ تمنا ہے اگر. زندگی کے بعد یہ زندگی باقی ہے. دیکھیے شعر یہ یہ شعر جو ہے اب تو ہے اہل سخن کے سامنے یہ مسئلہ. اب تو ہے اہل سخن کے سامنے یہ مسئلہ کس طرح سے بزم کی شائستگی کی بات. یہ رضوان صاحب کے لیے ہے. ایک شعر اور جو مجھے بھی پسند ہے آپ بھی پسند کیجیے گا. اب یہ ملنے سے رہی اس کی تمنا مت کرو. اب یہ ملنے سے رہی اس کی تمنا مت کرو. بس دعا مانگو وفا کا نام ہی باقی رہے. کیا بات ہے. پہلا بھی سبق نے پڑھا تو مولانا کمل نے پڑھا بتا دیا وہ جھک گئے. نہیں پہنچ گیا. اب مولانا دیکھیے آپ کو لگتا ہے لوگ دیکھ بس دعا مانگو وفا کا نام ہی باقی رہے. سچی زخم آخری شعر ہے. زخم اتنے کھا لیے ہیں اب تو یہ بھی ہے قبول.
मैंने खा लिए हैं। अब तो ये भी है कबूल है, बहुत गर्दातों के आसनी बाकी है। जख्म इतने खा लिए हैं, अब तो है ये भी कबूल बहुत उम्दा है, बहुत गर्दातों की आसनी बाकी है। वाह बहुत उम्दा, वाह जिंदाबाद। दो शायरों का नाम क्या है? अरे भाई, माल बहुत है। दो का पढ़ा था पद्म शम्स में। वो शेर, जी अता। एक शेर और रह गया, वो भी सुन लीजिए। ये अच्छा शेर ऐसे सुना था। नहीं सब नहीं अच्छा किया। सब अच्छे शेर है आप। सुनना पड़िए, वो बात भी खत्म कीजिए। हाँ। हो जाएगा। ये अच्छा है। होने नहीं हो रहा था, लगा कि इच्छा शेर मुला था। आबरू आरजूमंदी है तेरे हाथ में, आरजूमंदी है तेरे हाथ में, चाहता हूँ ऐ खुदा इज्जत मेरी बात। आरजूमंदी है तेरे हाथ में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहता हूँ ऐ खुदा इज्जत मेरी बाकी रहे। वाह। और ये मकतब भी देख लीजिए। ज़र्फ़ इतना भी नहीं जाजिब तो फिर रिंधी ही क्या। ज़र्फ़ इतना भी नहीं जाजिब तो फिर रिंदी ही क्या, बेखुदी में करना एहसास खुदी बात। कर शहादत की तमन्ना, ये तमन्ना है अगर जिंदगी के बाद भी ये जिंदगी। बहुत उम्दा जनाब, बहुत उम्दा। मतलब अच्छी शायरी आज सुनने में आई कि लाखों रुपए के मुशायरे में नहीं हो पाते इस तरह के, तो खुलूस अगर हो इंसान के अंदर तो कोई भी काम कामयाब हो सकता है। इसी खुलूस नियत से आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जो कामयाबियों से हमसरार हुआ। सफ़े आखिर से लेके सफ़े अव्वल तक, सफ़े अव्वल से लेके सफ़े आखिर तक हर शख्स ने अपना किरदार अदा किया। लिहाजा नाम बनाम सबका नाम न लिया जाए, तो यूँ भी सबका शुक्रिया अदा किया जा सकता है कि जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। तो ज़र्रे से लेके आफ्ताब तक यानी आप तक मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और चाहता हूँ कि चंद कलिमात के ज़रिए आप भी इस महफिल के हवाले से और आज का क्या मकसद था, ये मुफीद है महफिल या बेमकसद है या खामखा वक्त ज़ाया किया, इनका नाश्ता बर्बाद किया, इनकी जगह का असराफ हुआ और हम लोगों का टाइम, अगर कुछ कारनामा है तो बताइए। महफिल इतनी शानदार थी और जितने लोग यहाँ शरीक हुए हैं ये सब अदब के फनकार हैं और उर्दू के चांद सितारे हैं। इतनी अहम मेयारी नशिस्त का इनेकाद हलीम खां साहब ने अपनी रिहाइशगाह पर किया है। इसको सिर्फ असानी तक महदूद नहीं रहना चाहिए था और इतनी मेयारी नशिस्त के बाद कुछ नारे जमी का भी बंदोबस्त होना चाहिए था। बहुत अच्छा। वाह भाई वाह, और ताकि उसका मेयार बरकरार रहे। वाह भाई वाह, ये आपने आखिरी की खूब लगाई। बचपना याद दिला दिया इन्होंने। और इसमें दो आदमियों ने सामी की हैसियत से शिरकत की है। मैं चाहता हूं कि वो लोग भी वैसे शायर के इसमें हिस्सा लें। ये और बात है कि उनका तस्करा ना है अखबारों में, लेकिन मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर होगा। हाजी मुशर्रफ साहब की ज़िंदगी खिदमत खल्क़ में गुजर रही है, तो वो क्या उनके तासुरात हैं। मैं समझता हूँ कि इस शेर से उनके तासुरात ज़ाहिर हो जाएंगे कि भाई मुशर्रफ साहब के तासुरात हैं ये। हाँ, आज तक उनकी बदली हुई है नजर, आज तक उनकी बदली हुई नजर। हाजी मुशर्रफ साहब फरमा रहे हैं आज तक उनकी बदली हुई है नजर। अम्मा बेचारा तो दोहराइए, अभी दाद दीजिए उनको। आज तक उनकी बदली हुई है नजर,
बेवफा कह दिया था, बहुत दिन हुए। हलीम खान साहब को भी बहशत सामे के शायरी में उनको भी शामिल कर लिया जाए। जो उनका मिजाज है वो मेरे मिजाज से हम आहंग है। तो हलीम खान साहब कह रहे हैं कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे। तो शुक्ला जी है नहीं है? मुसलमान दिखाई दे। हलीम खान साहब कह रहे हैं हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे। बता दो भाई ये दिखाई दे, आंखें तरस रही हैं कि इंसान। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना मजबूत शुक्रिया किसी महफिल में मैंने कम देखा है। ये सदारत का मसला जब भी हो इनको बुलाया जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद है कि यौम जमहूरिया के मौके पर हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। आपसे बस इतनी सी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इस प्रोग्राम के लिए आपने जो वक्त दिया उसके लिए बेहद शुक्रिया।